Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we are doing physics on this channel, and in this particular series we are solving question paper of Master Cadre Science that was held on 10th of the January 2021, and we've already covered 20 question in previous videos, 10 in each video. So today we are going to solve another 10 questions. So let's start with our today's video. So first question that I've written here is velocity of electromagnetic wave in free space. So electromagnetic wave can have any wavelength or can say frequency, as long as the relation, which is nu lambda equals to c, remain constant. Means as long as it is moving with the velocity of light, so it is independent of frequency, or can say wavelength, as long as it is moving with the velocity of light. So here it is not increasing with increasing the value of f, or decreasing with decreasing the value of f, or it is neither zero. So the only correct option that I've written here is independent of f. Velocity of EM wave is independent of f. So next is velocity of wave in an ideal conductor. So velocity of wave in an ideal conductor is 0. Next question, third. If a current of 1 ampere following in an inductor, L equals to inductance is equals to 2 Henry, and the energy stored in an inductance is, so as we all know the formula, E equals to half LC square in the form of inductor. So if we are putting the value of that we have given here, half L equals to 2 and C square 1 square, so it is 1 by 1, that is 1. So our correct answer is this, 1 joule. So next question is, a voltage will influence current only if the circuit is. तो जो है वोल्टेज वो करंट को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, सर्किट कैसा होना चाहिए कि वोल्टेज जो है वो करंट को इन्फ्लुएंस करे. तो अगर हमारा जो सर्किट है वही ओपन होगा तो फिर वो करंट को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी. जितनी चाहे मर्जी हम वोल्टेज इंक्रीज कर दें, अगर वो हमारा सर्किट ही ओपन है तो वो मतलब अफेक्ट नहीं करने वाली. तो ओनली वे जो हमारी वोल्टेज है वो अफेक्ट करे करंट को कि सर्किट ही क्लोज हो पहले, मतलब स्विच ऑन हो. अगर ऑफ है तो फिर वो मतलब अफेक्ट नहीं करेगी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्लोज्ड सर्किट. तो टू डिस्क्राइब अ डायनामिक सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू डिस्क्राइब अ डायनामिक सिस्टम वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ. नाउ हियर वी हैव गिवन द वर्ड डायनामिक. डायनामिक मतलब मूविंग, नॉट स्टैटिक. जो हमारा सिस्टम है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है. तो अगर स्टैटिक होता तो सिर्फ हमें पोजीशन की मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि हाँ वो किस जगह पे पड़ा है, तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते थे. पर अब डायनामिक है सिस्टम, तो हमें पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम की भी ज़रूरत है. तो इसीलिए हम सिर्फ पोजीशन की वजह से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसकी पोजीशन को, या फिर अकेले मोमेंटम से भी उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमें दोनों का नॉलेज होना चाहिए, पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेज स्पेस इज 4D 2D 3D एंड 6D. सो अगर हमें अब पता है कि फेज स्पेस का ये जो कॉन्सेप्ट इट इज़ हाइपोथेटिकल मतलब कॉन्सेप्ट. तो द डायनामिक सिस्टम और मोशन ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉम्प्लिकेटेड दैन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इन जनरल अगर हम बात करें तो जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है ऑफ अ सिस्टम की, तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दैट इज़ x y z एंड 3 momentum coordinates px, py and pz. These all are required to the three-dimensional space to specify the position of a system by 3 coordinates. उन्हें हम बोलते हैं position space. And on the other hand, three-dimensional space in which मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py, pz, तो उसे हम बोलते हैं मोमेंटम स्पेस. तो इन जनरल अगर हम बात करें तो वी मस्ट हैव 6 क्वांटिटीज, दीज 6 क्वांटिटीज टू स्पेसिफाई आवर सिस्टम. तो अगर हम बात करें कि जो हमारा सिस्टम है उसे हम फिर बोलेंगे 6 डायमेंशनल. जो हमारा करेक्ट आंसर है 6 डायमेंशनल. और ये 6 डायमेंशनल जो हमारा सिस्टम है इसे हम म्यू स्पेस भी कहते हैं.
म्यू स्पेस, ठीक है। सो फेज स्पेस इज 6 dimensional as per our options. Okay, so next question क्या है, matter waves. If you can see, matter waves are either longitudinal, always travel with the speed of light, electromagnetic, and show diffraction. So the correct answer as per our options are show diffraction. How? Because matter waves are neither longitudinal nor transverse, they are not electromagnetic, or one thing more. अगर किसी भी ऑप्शन के साथ ऐसा वर्ड दिया हो जो उसको एक पर्टिकुलर मतलब यूनिवर्सल बनाता हो, जैसे ऑलवेज, पर्टिकुलरली, श्योरली, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो अगर ऑप्शन के साथ आ रहे हैं तो वो ऑप्शन हमेशा मतलब नहीं होगा, वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब अप्लाई होता है कि मतलब जिस ऑप्शन के साथ ऑलवेज, श्योरली, डेफिनेटली ऐसे वर्ड्स आते हैं जो उसको 100% श्योर बनाते हैं तो वो वाली ऑप्शन हमेशा ही इनकरेक्ट होती है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो हेयर मैटर वेव्स, अगर यहाँ पे डायफ्रैक्शन आया है, अगर इंटरफेरेंस भी होता तो भी ये करेक्ट होनी थी, बट एज पर आर ऑप्शंस डायफ्रैक्शन इज गिवन हियर, तो आर करेक्ट ऑप्शन इज 4th one, which is show diffraction. So matter waves show diffraction. Next question is, of the following particles moving with the same velocity, the one which has largest wavelength. अब सेम वेलोसिटी के साथ अगर सारे पार्टिकल्स मूव करें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, तो सबसे ज़्यादा जो है वेवलेंथ वो किसकी होगी? तो अगर हम बात करें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो एज वी नो E इक्वल्स टू एच न्यू एंड E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर. सो न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर अपॉन एच and C equals to nu lambda and nu equals to C upon lambda. So I'll write here lambda equals to C upon mc square, C upon mc square into h. So C के साथ C कैंसिल हो गया, h upon mc. So lambda is inversely proportional to h upon m. So it is like this. So lambda is inversely proportional to m. So greater the mass, lesser will be wavelength, and lesser the mass, greater will be the wavelength. So हमें फाइंड करना है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है. So अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों का मास कंपेरेबल है, ठीक है. और अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स. तो मतलब अगर हम बात करें तो फिर मतलब ये तीनों ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवियर हैं. मतलब अगर हैवी हैं तो वेलोसिटी अगर हैवी हैं तो वेवलेंथ क्या होगी, लेसर होगी. और इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन. ओके. So next question is, uncertainty relation cannot hold good for which of the following pair. अब cannot की बात आई है, ये मत देखना कि uncertainty relation given है सीधा पोजीशन मोमेंटम पे मार्क करके आ जाओ. पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि uncertainty relation cannot hold good for which of the following pair. हमने बताना किसके लिए वो मतलब अप्लाई नहीं हो रहा. तो पोजीशन मोमेंटम हमने शुरू से पढ़ा, उसके लिए होता है. एनर्जी टाइम पढ़ा है. अब मतलब 2 ऑप्शन हैं जो अगर बच्चों को कंफ्यूज कर सकती हैं, लीनियर मोमेंटम एंड एंगल की, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल की. अब ये भी वैसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि डेल्टा जे डॉट डेल्टा थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच, हमने ये रिलेशन भी पढ़ा है. मतलब एंगुलर मोमेंटम और एंगल का रिलेशन भी पढ़ा है. तो जो ओनली ऑप्शन जो अटपटी सी लगती है, लीनियर मोमेंटम और एंगल, वो सबसे वियर्ड मतलब ऑप्शन है वो लीनियर मोमेंटम एंड एंगल की है. तो जिसके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट होल्डिंग गुड, वो है 3rd ऑप्शन, दैट इज लीनियर मोमेंटम एंड एंगल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन डिटेक्टर फॉस्फोर इज यूज्ड. अब फॉस्फोर कहाँ यूज होता है, तो फॉस्फोर अगर फॉस्फोर मटेरियल पे जब लाइट फॉल करती है तो दे प्रोड्यूस
आफ्टर इफेक्ट, मतलब जब लाइट फॉल करती है, जैसे होते हैं रोड साइंस होते हैं, तो उन पर अगर लाइट फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। वो क्या करते हैं, उस रिफ्लेक्शन को कर उन उस जो हमारा जो रोड साइन है उनके चमकने को क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन। मतलब सिंटिलेशन मतलब वो चमक प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने इसका सिर्फ उसको डिक्शनरी मीन पता है और ये पता है कि फॉस्फोर किस किस के लिए यूज़ होता है, तो वो अगर उसने काउंटर्स नहीं भी पढ़े तो भी आंसर कर सकता है। बिकॉज ये अगर आप बोलेंगे ये पर्टिकुलरली काउंटर्स का क्वेश्चन है, हमें सारे काउंटर्स पढ़ने हैं, काफ़ी एक फुल फ्लेज टॉपिक बन जाता है अपने आप में काउंटर्स का। लेकिन अगर आप देखो क्वेश्चन कौन सा पूछा है, इट इज़ बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, तो अगर उसके बिहाफ पे भी आप आंसर करो तो फॉस्फोर जो है अगर उसके बिहाफ पे भी आंसर करो तो फॉस्फोर जो है वो सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। तो इट इज़ यूज्ड इन सिंटिलेशन काउंटर्स। ओके, तो कई मतलब ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन देख के घबरा जाना। कई बारी मतलब बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, आप वर्ड्स को अगर रिलेट करो तो भी आंसर कर सकते हैं। सो अभी तक हमने टोटल 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इन ऑल दोज ग्रुप्स विच आर स्टडी ओरिएंटेड और कैन सी फिजिक्स ओरिएंटेड और स्पेशली मास्टर कैडेट साइंस ओरिएंटेड, and also share with all those people who are preparing for physics in any kind of exam. So this is all for today. Thank you very much.